Educated pata. Good morning, students. I'm Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about cell chapter. It is the chapter number 5 of your book. So, in this chapter, we will learn about the cell, what are the functions of the cell, and what are the basic cell organelles and their functions, and what is the importance of that cell organelles in the cell. So, as you can see here, cell is called as the structural and functional unit of life. Like you can say कि जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल. And first Robert Hooke had discovered it, and we will read about this chapter in the book. So you must learn it in the book. So in cell is called the structure and function unit of life because every organism is made up of the cell. When a group of cells is combined, then it will form the tissues, and when a same working tissues group together, they will call as the organs. Number of organs will combine to a organism. So this is the basic structural unit of the life cycle. As you know, cell is doing different type of process in the cell. For example, nutrition is done by cell. Different type of cells that are specific working over the nutrition that is also doing by cell. Some cells are specified for the respiratory purposes, so they are working only for the respiration purposes, and some cells are you can say specified for the doing excretion, so they are doing excretory work there. And most of the cells that are doing for the reproductive purposes. As our body is has two type of cells in our body. One is called somatic cell, second is reproductive cell. So somatic cells has a growth and development of the body, and germ cell or reproductive cells has in reproduction. So reproduction is the process of production of the same kind of species that has the same characteristics. So that's all about we will learn about the cell. So let's read about the chapter. The cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 में. He observed the cell in a cork slice with the help of a प्रिवेटिव माइक्रोस्कोप. उसने सबसे पहले सेल को अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा था. लेवन हुक विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. लेवन हुक ने क्या किया था, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से 1674 में डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. उसने क्या किया था, एज यू नो कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉक सेल को देखा था. कॉक सेल इज़ ए डेड सेल, बट फर्स्ट लिविंग सेल को 1674 के अंदर लेवन हुक के द्वारा देखा गया था, जिन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था इन द पॉन्ड वाटर सेल्स. सो इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आए हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल. ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी सेल के अंदर. पुरकंजी इन 1839. पुरकंजी के ने 1839 के अंदर कोइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की टर्म को निकाला. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है सेल, the plasma of the cell plus nucleus, both terms together will call the protoplasm. For the fluid substance of the cell, जितना भी fluid substance होता है सेल को, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा था उन्होंने. The cell theory that all the plants and animals are composed of the cell. ठीक है, जो सेल थ्योरी थी दैट वॉज कंपोज्ड ऑफ, जितने भी आपके प्लांट सेल हैं या एनिमल सेल हैं उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके बारे में जो सेल की थ्योरी थी
that was given by skeleton and squamous. So that was given by animals are composed of the cell, and that the cell is the basic unit of life were presented by two biologists Skeldon and Squan 1839 के अंदर स्केल्डन एंड स्क्वेन ने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की थ्योरी को डिस्कवर किया। ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा कि जो आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या बनाई गई है, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द सेल, वो आपके सेल के बने हुए होते हैं। सो दे थिंक अबाउट सो द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू, जो आपकी सेल थ्योरी थी उनको बाद में वर्च्यू ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जितनी भी आपकी सेल होती हैं, जो न्यू सेल आती हैं वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेली। इनके द्वारा ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था जो 1940 में डिस्कवर किया गया, उसके द्वारा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को देखा गया, उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया गया। Now, the invention of the magnifying lens led to the discovery of the microscope world. ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके डिफरेंट टाइप के लेंस की डिस्कवरी हुई, और लेंस की डिस्कवरी के साथ आपका क्या है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपिक जो आपके पार्टिकल्स थे उनके बारे में भी डिस्कवर किया गया। इट इज़ नाउ नोन फॉर दैट ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। अब आप क्या कह सकते हो कि एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा आपका एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, एंड दिस सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। नाउ क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सच एज uni means singular and organism means organism. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it from the various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi and plants and animals. Both are the examples of the multicellular organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर आपके डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, and these different cells are performing different functions of the body. So this is called the multicellular organism. For example, आपकी फंगी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, all these are the example of it. Can we find out names of the some more unicellular organisms? कुछ आपके डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आपके सेल से ही बनते हैं, बिकॉज फर्स्ट सेल विल गेट टुगेदर, आपकी जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, और दीज सेल्स विल मेक टू द different tissues, and these different tissues will make the different organs. So how cells divides to produce cell on their own kind means कि this the you can say the Virchow, Rudolf Virchow was the scientist that discovered how the cells are produced from the pre-existing cell. So that was the reproduction done. Now you can see here the cell divides to produce the cell of their own kind. All cell thus comes from the pre-existing cell. जो आपकी नई सेल पैदा होती हैं वो pre-existing cell से ही आती हैं. That's why we can say जो सेल आपकी डिवाइड होंगी they will come from the previous cell or the old cell. Now you can see the activity 5.2. यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5.2 दिखाई दे रही है. We can try preparing temporary mounds of the leaf peels. हम यहाँ पर टेम्परेरी माउंट्स तैयार करेंगे लीफ पील्स की. टिप ऑफ द रूट्स ऑफ द ऑनियन, ऑनियन की टिप तैयार करेंगे. इवन द पील्स ऑफ द ऑनियन ऑफ द डिफरेंट साइजेस. आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी let us see what is the answers of the following question would be like. Do all cells look alike in terms of the shape and size? बेटा देखिए डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ऑन द फंक्शंस ऑफ देम दे आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सो
डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द स्ट्रक्चर, मीन्स जो जिसका जितना फंक्शन होगा वो उसके हिसाब से ही अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. नाउ वी विल डिफरेंट, देयर आर डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट्स वाई वी कैन से कि जो आपकी सेल्स हैं दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. Now you are able to see here there are what is the differences between the cell of the different plants body, means plant body के अंदर आपकी जो cells होती हैं उनके अंदर क्या difference होता है और उनके अंदर क्या similarity पाई जाती है. Some organism can also have the cell of the different kind, कुछ ऐसे organism होते हैं जिनकी आपकी different cells होती हैं. Look at the following picture, it depicts some cells from the human body, means human body में आपके different type की cells present होती हैं and these different cells are performing different functions of the body. So in this chapter we will follow out this. As you will follow about the neuron cell, they are very elongated so that they can transport the message to different body parts of the cell. You are able to see here the nerve cell. Nerve cell is very elongated so that it can pass the message to different body parts. Now blood cell, it is RBC and it doesn't have the nucleus. RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज जो न्यूक्लियस का प्लेस होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर लेता है. दैट्स वाई RBC doesn't contain the nucleus in it. Now you can say smooth muscle cells की जो cells होती हैं they are elongated in structure. Ovum is very large in large cell होती है ovum, and you can say bone cell होती हैं they are multiple branches so that they can connect the different sensory organs to it. Now the sperm cell, you can say it is very it is just spiral in shape so that it can move fastly with this speed so that it can fertilize the ovum. The shape and size of the cells are related to the specific function they perform, means जो shape and size होता है किसी सेल का वो उसके specific functions पे डिपेंड करता है. Some cells like amoeba have changing shape. जो अमीबा सेल होती हैं वो अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड. इफ़ दे वांट टू फीड सम पार्टिकल देन दे विल spread around that particle and they will engulf it, they will eat it. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of the cell. For example, nerve cell have a typical shape, means जो nerve cell होती हैं they are elongated shape so that they can take message from the different sensory organ and give message to the different receptor cells. So now each living cell has the capacity to perform contain basic functions that the characteristics of the all living forms, means each living cell आपकी क्या होती है कैपेसिटी होती है उसकी कुछ सर्टन फंक्शंस को बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की. दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल लिविंग फॉर्म्स, मीन्स वो क्या होती है डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग होती है. एज यू नो न्यूरॉन सेल्स का जो काम होता है वो मैसेज को कलेक्ट करना होता है या मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. लाइक वाइज आपकी आरबीसीज का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है एंड डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल एंड गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना होता है. नाउ हाउ यू कैन से हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस. We know that there is a division of labor in the multicellular organism such a human being, means division labor होता है. labor of division means every cell has a unique feature, it will do specific function, not a single type of cell will do here. multicellular organisms में आपका division of labor पाया जाता है, means डिफरेंट जो आपकी अलग अलग सेल्स होंगी जो आपकी सेपरेट सेल आपकी सेपरेट फंक्शंस को परफॉर्म करेगी. फॉर एग्जांपल जो आपकी रेस्पिरेटरी सेल्स होंगी जो रेस्पिरेशन का काम करेंगी, एक्सक्रीटरी सेल्स आपका एक्सक्रीशन का काम करेंगी, डाइजेस्टिव सेल विल हेल्प इन डाइजेशन. सो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फंक्शंस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो नाउ हियर यू कैन सी कि दिस मीन्स that the different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump the blood. देखिए बेटा जो आपकी बॉडी में जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के. फॉर एग्जांपल आपका हार्ट होता है उसका काम ब्लड को पंप करना है सो दैट इट कैन रीच टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ताकि वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच सके. एंड इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आल्सो विद ए ग्रेटर प्रेशर ताकि वो क्या ग्रेटर प्रेशर के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर सके. स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड, स्टमक का काम फूड को डाइजेस्ट करना है. एंड सो ऑन अदर
organs have the similarity functions. Similarly, division of labor is also seen within a cell. Within a fixed cell, single cell also. In fact, each such cell has got certain specific component within it is called सेल ऑर्गेनली। बेटा एक सेल के अंदर भी आपके क्या होते हैं, सिंपल पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। such as a making of new materials in the cell, clearing of the waste material from the cell and so on। मीन्स आपके ये डिफरेंट फंक्शन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका क्या है, न्यू मटेरियल्स की मेकिंग एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका रिमूवल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर फंक्शंस आर आल्सो। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनलीज। जो आपकी ये सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, इनके कारण ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। दीज ऑर्गेनलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कॉल्ड सेल। ठीक है, ये आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो आपकी सेल की बेसिक यूनिट्स होती हैं इनसे। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनलीज। ये आपकी क्या होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं आपकी सब के अंदर सेम टाइप की सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन। ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही हैं, चाहे उनका कैसा ही फंक्शन है, ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, वो आपके ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ दी एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल किसकी बनी होती है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वी सॉ अबाउट दैट द सेल हैज़ ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल ऑर्गेनली। हाउ इज़ ए सेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आपकी एक सेल कैसे ऑर्गेनाइज होती है। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। मीन्स यदि हम किसी सेल को स्टडी करते हैं उसके डिफरेंट फीचर्स आपके निकल के आते हैं। दैट फीचर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।